السلام علیکم میرے پیارے مسلمان یارو دوستو، ایک طے شدہ بات ہے، بالکل سچ بات ہے۔ ویڈیو کو اوپر نہ کرو، سن لو، شاید ہماری بات سے آپ کو کچھ اچھی بات سننے کو مل جائے اور اس بات سے آپ کو کچھ فائدہ ضرور ہو جائے۔ میرے یارو میرے دوستو، دنیا بھر میں مسلمان بڑی ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے۔ اسلام کے دشمن جو ہے شروع سے دھرتی پر چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، جس دن ہم نے دھرتی پر آدم کو اتارا، اسی دن ہم نے ابلیس کو بھی دھرتی پر اتارا۔ حق اور یہ باطل کا ٹکراؤ، لڑائی چلتی رہے گی اس وقت تک جب تک مغرب سے سورج نہیں نکلتا۔ تو میرے یارو، یہ لڑائی آگے بھی چلتا رہے گا، آج بھی چل رہا ہے، اور اس لڑائی میں ہم آدم کے اولاد ہمیں آخرت کی تیاری میں لگنا ہے۔ ہمیں جو ہے اپنے پتا، انسانیت کے پتا جو ہے آدم ہے، اس کے شان کو بچا کے رکھنا ہے، اس کی مریادہ بچا کے رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے میرے یارو؟ تو آج کے دور میں ہم جو ہے امت محمدی ہے، ہر انسان آدم کے اولاد میں سے ہے، اور آدم کے اولاد میں سے ہی اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور آدم کے اولاد میں سے ہی اسلام کو ماننے والے بھی قائم ہے۔ یہ دھرتی اللہ نے بنائی ہے، بڑی پیار سے، بڑی خوبصورت طریقے سے سجائی ہے، اور اس دھرتی میں ساری سرشٹی جگت میں انسان جو ہے سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، سب سے بہترین ہے۔ لیکن وہ انسان بہترین ہے جو دنیا کی زندگی میں، چھوٹی سی زندگی میں، مختصر زندگی کو اللہ کے حکم کے حساب سے چلائے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے حکم کو پورا کرے گا، اپنے اپنے زمانے کی رسول کی، نبی کی اطاعت کرے گا۔ تو ہم جو ہے امت محمدی ہے، ہمارا نبی اعلیٰ نبی ہے، امام الانبیاء ہے، سب سے بہترین نبی ہم کو ملا ہے، ہر نبیوں کا بھی نبی ہے ہمارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی محبت سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ تو ہمیں فخر ہے کہ ہم امت محمدی میں آئے، یا پھر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ہم آنے کے لیے کسی سے درخواست نہیں کیا تھا، کسی کے پاس ہم نے جو ہے درخواست نہیں بھیجا تھا، اپلیکیشن نہیں بھیجا تھا۔ اللہ نے ہمیں دھرتی پر انسان کے شکل میں بھیجا ہے، اور اللہ نے ہم پر رحم کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ تو ہمارا یہ کرتویہ بنتا ہے، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کی حکم کو پورا کریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ تو ہم انسانوں میں وہ انسان سب سے بہترین ہے، سب سے تقدیر والے ہے، سب کامیاب انسان ہے جو اللہ کی حکم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پورا کرے گا، اور جو انسان اللہ کی حکم کو چھوڑ کر منمانی کرے گا، نفس کی غلامی کرے گا، شیطان کی اطاعت کرے گا، اور اپنا ایمان چھوڑ کر منمانی کرتے ہوئے، شیطان کی غلامی کرتے ہوئے جو انسان دنیا سے چل جائے گا، وہ انسان ناکام ہے، وہ انسان بدقسمت ہے۔ تو ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں جانا کہاں ہے۔ انسان کے لیے دو منزل اللہ نے بنایا ہے، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے۔ تو ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمارا منزل کون سا ہونے چاہیے، ہم کون سا منزل کو چوز کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ تو میرے یارو، جنت وہ ہے جو جہاں پر ہر خوشیاں ہی خوشیاں ہے، جہاں دکھ درد کی کوئی نام و نشان نہیں ہے، جہاں کوئی غم نہیں ہے، جہاں ہر خوشیاں ہے، جہاں من چاہی زندگی ملے گا، جو جی میں آئے گا اللہ ویسے زندگی عطا فرمائے گا جنت میں جنتیوں کو۔ جو دنیا میں رب چاہی زندگی گزار کے جائے گا،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करके दुनिया से ईमान के साथ जाएगा, उसके लिए मनचाही ज़िंदगी अल्लाह उसको अता फ़रमाएगा जन्नत में। और एक तबका इंसान में से जो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा, जो दुनिया में मनमानी करके, जो दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी करके, नफ्स की ग़ुलामी करके, शैतान की ग़ुलामी करके दुनिया से जाएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। जहन्नम जो है दुख दर्द की कोई कमी नहीं है, हर दुख है, हर दर्द है, हर परेशानी मुसीबत का जहान है जहन्नम। तो वहाँ कोई चैन व सुकून नहीं मिलेगा, कोई भी वहाँ खुशियाँ नहीं मिलेगा। वहाँ हर तरह की मुसीबतें, हर तरह की परेशानियाँ जहन्नम में अल्लाह ने रखा है। तो इंसान के लिए दो मंजिल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है। ये तयशुदा बात है, ये हक़ बात है दोस्तों। अब इंसान हम जो है, हमारी हर चीज़ जो है नाकिस है, देखने का, सोचने का, बोलने का, सुनने का, चलने का, हर एतबार से हम इंसान जो है नाकिस है, कमज़ोर है, दुर्बल है, हम लाचार है, बेबस है। चाहे कितनी भी पढ़ ले लिख ले, चाहे कितनी भी शिक्षा हासिल कर ले, फिर भी हम जाहिल है। बहुत कुछ पढ़ने लिखने के बाद भी हमसे गलती हो ही जाता है जी। बड़े बड़े पढ़े लिखे इंसान जो है नफ्स की धोखे में आकर गलती कर बैठते हैं। तो हर एतबार से हम इंसान जो है जाहिल और कमज़ोर है। तो हम इंसानों का ये हक़ बनता है कि हम हर एतबार से अल्लाह की मदद लेते हुए जिए। अल्लाह की मदद के बिना, अल्लाह की रहम व करम के बिना हम कुछ नहीं है। एक दौर हम पे ऐसे गुजरा है जब हम कुछ भी नहीं था, हम कुछ कहने की काबिल भी नहीं था जी, हम बिल्कुल सिफर थे जी। तो आज जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि 5 फुट 2 इंच के एक इंसान के शक्ल में हम अभी बैठे हुए हैं, हम बात कर रहे हैं आपसे। तो ये अल्लाह का शुक्र, नहीं तो क्या है दोस्तों, इसमें हमारा ताकत क्या खर्च हुई है, इसमें हमारा क्या ताकत है, हमारा आपका क्या ताकत है इसमें, जो हम जिंदा है, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो इसमें हमारा कोई ताकत खर्च नहीं हुआ दोस्तों, इसमें हमारा कोई बहादुरी नहीं है, अपना कोई चालाकी नहीं है। तो मेरे यारों, हम हर घड़ी, हर पल, हर दम, हर एतबार से अल्लाह का रहम व करम के मोहताज है। तो हमें जो है दुनिया में आखिरत की तैयारी करनी है। आखिरत की ज़िंदगी की लंबी ज़िंदगी है, बेशुमार ज़िंदगी है, लामहदूद ज़िंदगी है, जिसकी शुरू होती है मौत के बाद। हम दुनिया में मर जाएंगे दोस्तों, कितने आए कितने चले गए। आज करोड़ों है, हम सब एक दिन मर जाएंगे और हमारी बाद करोड़ों आएंगे, सारे के सारे दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। दुनिया रहने का जगह नहीं है मेरे दोस्तों, दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है। असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है, हमारी मौत के बाद शुरू होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली ज़िंदगी है। वहाँ मौत भी नहीं है, वहाँ बुढ़ापा भी नहीं है। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, आखिरत की ज़िंदगी की तैयारी हमें करनी है। चाहे हमें तो नज़र बिल्कुल नहीं आती आखिरत जी, अल्लाह नज़र नहीं आता, अल्लाह की रसूल को हमने नहीं देखा जी, जन्नत जहन्नम ये सारी चीज़ जो है हमने नहीं देखा और ना हम देख सकते हैं। हमारी आँख जो है नाकिस है, दुर्बल है, कमज़ोर है। हम अपनी जिस्म को ही पूरी तरह से देख नहीं पाते हैं, हम आईना लगा कर भी हम देख नहीं पाते हैं। ये सोच लो ज़रा मेरे दोस्तों, हमारी जो जिस्म है 5 फुट 2 इंची का, किसी का 5 फुट 5 इंची, किसी का 6 फुट, जो भी है, तो हम अपनी जिस्म को, पूरा बॉडी को ही आज तक हम ना देख सके जी। आज तक हम अपनी जिस्म को, अपनी बॉडी को ही पूरी तरह से ना देख सके। पूरी तो दूरी की बात, आधा भी हम ना देख सके, आधा जिस्म भी हम ना देख पाए आज तक। तो हम जन्नत जहन्नम ये सारी चीज़ कैसे देख सकते हैं दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, मेरे यारों, आईना का सहारा लेकर भी हम अपनी जिस्म को पूरी तरह से नहीं देख पाते। तो हम अल्लाह को, अपने क्रिएटर जो है तमाम कायनात को बनाया है, तमाम आसमान ज़मीन और आसमान ज़मीन के दरमियान जितने सारे चीज़ें हैं, कई चीज़ें हैं, करोड़ों चीज़ें हैं,
कई किस्म करोड़ों किस्म की चीज़ें हैं जिसे हम देख नहीं सकते। हमारा आँख नाकिस है, हमारा आँख जो है उस सारी चीज़ों को देखने की ताकत नहीं रखते। तो मेरे यारों मेरे दोस्तों, बहुत से दुनिया में ऐसी चीज़ है जो हम नहीं देखते। दुनिया में जितनी सारी चीज़ें हैं 100 में से 5% चीज़ जो है हम देख पाते हैं और कुछ चीज़ें हमें सुनने को मिलती है। ऐसे बहुत सी चीज़ है जो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ जो है हम देख नहीं पाते। तो इसीलिए मेरे यारों, ना देखकर विश्वास करना ही ईमान है, गैब पर ईमान लाना ही विश्वास है। जिसे हम माँ कहते हैं, हम सारे इंसान जो है माँ के पेट से ही दुनिया में आए हैं। दुनिया में आने से पहले माँ के पेट में रहते थे, तो माँ के पेट में रहते थे, इसका कोई डॉक्यूमेंट्स हम इंसानों के पास नहीं है, फिर भी हम उसे प्यार से माँ कहते हैं, विश्वास के साथ हम माँ बुलाते हैं, माँ मानते हैं। तो उसी तरह मेरे यारों, जो अहम चीज़ है उसको हम देख नहीं सकते। जिस तरीके से हम हवा को नहीं देख सकते। जी, एक फल में मिठास है, आम है, समझो आम है या फिर सेब है या फिर कोई भी फल हो, इस फल के अंदर जो मिठास होती है, उस मिठास को हम देख नहीं सकते, पर महसूस करते हैं, एहसास करते हैं। हम जब किसी आम को या फिर किसी फल को, फ्रूट को हम खाते हैं तो उसकी जो मिठास है, उसकी जो खटास है, जो उसके अंदर जो तासीर है, उसको हम देख नहीं सकते, पर उसको महसूस करते हैं और उसके हम जो है तारीफ़ करते हैं उस फ्रूट का। तो मेरे यारों, उसी तरह दोस्तों, हम अल्लाह को देख नहीं सकते पर देखेंगे। अल्लाह दीदार देगा, अल्लाह का वादा है। हर जन्नती को अल्लाह दीदार फरमाएगा। वो बड़ा नियामत होगा, वो क्या मंजर होगा दोस्तों, जो जन्नती अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखेगा। जो तमाम कायनात के बनाने वाले रब है, उसका दीदार मिलेगा जन्नती को। तो अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह की दीदार नसीब फरमाए, आमीन। तो मेरे यारों, अल्लाह की हुक्म को मान कर चलो, मन मानी छोड़ दो, नफ्स की गुलामी छोड़ दो, विश्वास रखो अपने रब पर, अपने आप पर विश्वास रखो। अपने हमारे जिस्म के अंदर जो रूह है, जिसकी वजह से हम जी रहे हैं, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, हमारे जिस्म के अंदर जो जान है, रूह है, उसको भी तो हम देख नहीं पाते मेरे दोस्तों। पर हम यकीनन विश्वास करते हैं कि हमारे अंदर रूह है, आत्मा है, तभी तो हम जिंदा है, सलामत है। तो मेरे यार, उसी तरह अल्लाह पर विश्वास रखो और अपने आप पर विश्वास रखो और नेक काम करो दोस्तों। अगर अपना कामयाबी चाहते हो, अगर अल्लाह का दीदार चाहते हो, तो नेक काम करो। प्लीज़ मेरे यारों, आपसे हम गुजारिश करते हैं, आपका हाथ पैर पकड़ के हम आपको गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं, अल्लाह की गुलामी करो, रब की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, सुन्नत पर अमल करो। अल्लाह हम सबको नेक बंदा बंदी बनने की तौफीक नसीब दे और अल्लाह की दीदार हमको मिले। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हमारी नेक मनोकामना पूरा कर दे। हमें तेरा दीदार चाहिए मेरे रब्बुल आलमीन। तेरा प्यारा बनाई हुई मंजिल जन्नत की आला मकाम हमें नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। और इस चाहत के साथ हमें जो है मेहनत करना चाहिए दोस्तों। मेहनत से ही कामयाबी मिलता है दोस्तों, चाहे दुनिया की कामयाबी हो और आखिरत की कामयाबी हो। मेहनत के अलावा कुछ मिलता नहीं है दुनिया में, हम सारे को पता है। मेहनत से ही दुनिया की या फिर कोई भी कामयाबी मिलता है, मेहनत करने वालों को। तो हमें चाहत भी रखनी चाहिए और अल्लाह से मांगते भी रहना चाहिए और इसकी तलब में हमें जो है मेहनत करनी चाहिए। तो मेरे यारों, अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए हक राह पर चलने की, गलत रास्ता छोड़ने की। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।